ٹاپک ہے اس لیے دماغ اللہ ایتھیسٹ بڑے میں اور ہمارے ساتھی جتنے بھی ہیں بابر بھائی اسپیشلی کیونکہ یہ ان سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے اس لیے یہ ہم نے یہاں پر کرنا مناسب سمجھا. یہ پنجاب والے کی براڈ کا ٹاپک ہے جس کو کہ یہاں پر ہی بنتا ہے. اب جو اس کو رپلائی دیا گیا ہے بابر بھائی اجازت ہو تو میں وہ بھی پلے کروں تاکہ جی شاہ صاحب بیس کریٹ کر لیں کہ ہم نے جب اس گفتگو کو ڈی کوڈ کرنا ہے تو وہ کن معیاروں کے اوپر کرنا ہے اور پھر فردر آگے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اس کی جو انہوں نے بونگیاں ماری ہیں اس کے اندر کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ عقل سمجھ اور کریٹیکل تھنکنگ رکھنے والا ایک مسلمان نہ بھی ہو, کوئی ایتھیسٹ ہی ہو جو کریٹیکل تھنکنگ رکھتا ہو, جسے واقعی ایتھیزم کے بارے میں کچھ پتا ہو, جسے واقعی میں کریٹیکل ریزننگ آتی ہو اور انفائنائٹ ریگریس اور کنٹینجنسی آرگیومنٹ یا فلسفے کا تھوڑا سا بھی پتا ہو تو اور میتھمیٹکس کا تھوڑا سا بھی پتا ہو, سائنس کا تھوڑا سا بھی پتا ہو تو وہ اس کی اس تقریر کو صرف خود پسندی اور یہ جو جاوید اختر ہے اس کی ہار کو وائٹ واش کرنے کے لیے جو نیریٹو پش ہو رہا ہے یہ صرف وہ لگے گا. ٹھیک ہے, ابھی فی الحال آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس نے بڑی باتیں کی ہیں لیکن اس کو ڈیکوڈ کر. سوال یہ ہے کہ کیا آپ گریوٹی اور کانشس کو بھی مانتے ہیں کہ وہ امیجنری ہے یا نان ایگزسٹنٹ ہے؟ اگر نہیں تو خدا کے ساتھ ایسا ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ اس کا جواب دیجیے. اب یہاں پر اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر گاڈ ٹائم لیس ہے تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ جملہ فلسفے میں بچوں کو بھی نہیں سکھایا جاتا. ٹائم لیس ہونے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ کوئی شے موجود ہی نہیں. ٹائم لیس ہونے کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم کے اندر نہیں ہے. اب ٹائم کیا چیز ہے؟ ٹائم بیسیکلی یونیورس کی پراپرٹی ہے جو کہ یونیورس کی بگننگ کے ساتھ سٹارٹ ہوئی. اب یہ جو ہے یہ آئنسٹائن کے بعد کی اسکول لیول کی سائنس ہے جس کو یہ سمجھ نہیں پا رہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ٹائم یونیورس کے ساتھ شروع ہوا تو یونیورس کا جو بیسک کاز ہے وہ ٹائم کے اندر کیوں ہوگا؟ یہ کہنا کہ گاڈ ٹائم لیس ہے اس لیے ایگزسٹ نہیں کرتا ایسا ہی ہے اس سے ایگزسٹنس کو کتاب کے اندر مطلب آتھر کتاب کے اندر نہیں اس لیے آتھر ایگزسٹ نہیں کرتا. کیا بچکانا بات ہے. ایک چیز جو شروع ہی یونیورس کی پراپرٹی کے طور پہ یونیورس کی بگننگ کے ساتھ شروع ہو رہی ہے آپ اس کے اندر اس کریٹر کو لا ہی کیسے سکتے ہیں؟ یہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہے جو بات ہی کر رہے ہیں. اب یہاں پر بیسیکلی اویس اقبال صاحب قرآن اور اینتھروپومورفزم کو کنفیوز کر رہے ہیں. اویس اقبال صاحب قرآن سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گاڈ جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہے قرآن کے مطابق کیونکہ قرآن میں خوش ہونا, ناراض ہونا, عرش کا ہونا, پانی وغیرہ وغیرہ کا ذکر موجود ہے, خدا سے ریلیٹڈ ہاتھ ہونا اور ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہ اعتراض میٹا فزکس پر نہیں ہو رہا, یہ بیسیکلی زبان پر ہو رہا ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر مذہبی جو متن ہوتا ہے نا وہ ایبسٹریکٹ ٹروتھ کو ہیومن لینگویج میں بیان کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے لیے یوز ہونا ہے. وہ ٹیکسٹ یوز کس نے کرنا ہے؟ انسان نے یوز کرنا ہے. اس کی زبان کے مطابق, اس کی انالیسز کے مطابق, اس کی سمجھ کو سمجھنے کے لیے آسان بنانے کے لیے اس لینگویج کو استعمال کیا ہے جس کو کہ وہ اب لٹرلی کنسیڈر کر رہے ہیں. حالانکہ اگر مثال دی جائے فار ایگزامپل کہا جائے کہ لا اندھا ہوتا ہے یا قانون اندھا ہوتا ہے, لا از بلائنڈ, تو کیا لا کی آنکھیں ہوتی ہیں؟ کیا اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے, نہیں, ایسی باتیں ہیں. جب یہ کہا جائے کہ ہسٹری ریممبرز تو پھر یہ بات بیسیکلی بتائی جا رہی ہے اس بات سے کہ ہسٹری کے پاس دماغ ہوتا ہے. نہیں, یہ میٹافور ہے, ڈسکرپشنز نہیں ہے. اویس اقبال صاحب جو ہے وہ لٹرلزم کو فلسفی سمجھ بیٹھے, یہ حال ہو گیا. آخر میں یہ اویس اقبال صاحب ایک طنزیہ جملے کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کائنات سے پہلے اللہ خود کو کس نام سے جانتا تھا. یہ سوال ایتھیزم نہیں ہے, اسٹینڈ اپ کامیڈی ہے. آپ اسٹینڈ اپ کامیڈی کر لیں, زیادہ بہتر ہوگا, آپ کا اس میں زیادہ فیوچر مجھے سیکیور نظر آ رہا ہے. ناموں ریالٹی جو ہوتی ہے وہ ناموں کی محتاج نہیں ہوتی. نام انسان ایسے یہ کہ اس کا ٹاپک چل رہا ہو اویس اقبال کا اور میں کہوں جی ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور فلانے علاقے سے ہے اور وہاں کی مونگ پھلی بڑی مشہور, کمال بات. ابھی ٹاپک سے کیا ریلیٹڈ ہے؟ یہ ریلیشن ہی کوئی نہیں ہے. وہ انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اپنے ذاتی عقائد اور وہ چیز بھی مطلب ہے وہ ایکسپلینیشن نہیں دی. کیا آپ آگے سے یہ کہتے ہیں میری مسلمان سے تو بات ہی نہیں ہو رہی؟ بات مسلمان سے نہیں ہو رہی, بات خدا کے ماننے والے سے ہو رہی ہے اور انہوں نے وہ بات کی ہے جو آپ کو ایکسیپٹیبل ہے. ورنہ تو ان کے لیے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اپنے بارے میں باتیں بیان کی ہوئی, ہمیں تو اختلاف ہی نہیں, ہمیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو یہ شاہ صاحب یہ آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ عجیب بچپنا کر رہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مسلمانوں کا کیا خیال ہے. سو بیسیکلی یہ ایک اور چیز ظاہر کرتا ہے کہ یہ واقعی اسلام مخالف انسان ہے, یہ ایتھیسٹ کم اور اسلام مخالف زیادہ ہے. یہ تمام وہ باتیں کر رہا ہے جو اسلام سے اس کو تکلیف ہے یا ان پر اعتراضات کر رہا ہے, یہ اپنے بلیف یا اپنی سوچ کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کر رہا. یہ عجیب سا انسان کہ جناب یاری اس کو کیسے نہیں پتا. مفتی شمائل ندوی صاحب نے تو انہوں نے فرمایا ہے وہاں پر وہ کہتے یہ ہیں کہ تمام تعریفیں اس کریٹر کے لیے جس نے سب کچھ بنایا. انہوں نے اس طرح سے انٹروڈکشن کروایا. یہ وہاں پر بسم اللہ کا ذکر کرا ہے, حالانکہ انہوں نے بات وہاں پہ الحمدللہ سے شروع کی ہے. اتنا بڑا بونگا ہے
اتنی بڑی بونگی ماری ہے کہ وہاں پر انہوں نے بات شروع کیا الحمدللہ سے شروع کیا بات, ٹھیک ہے, کہ سب تعریفیں اس کریٹر کے لیے. میں کلپ بھی ڈھونڈ کے وہ چلا دوں گا تاکہ اس کی یہ بونگی بھی پکڑی جائے. لیکن یہاں پر یہ جان بوجھ کر, اب یہ کیا ہوتا ہے, اسے بولتے ہیں کہ جب آپ کسی ڈیبیٹ کو صرف اس لیے سن رہے ہو کہ آپ نے اس کی مخالفت در مخالفت کرنی ہے, تو اس کے دوران اپنی دشمنی کو نکالنے کے لیے بہت سارے ایسے نقطے جو آپ کے مائنڈ کا عکس ہوتے ہیں آپ دوسرے کے اوپر وہ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بالکل مطلب ایک یہ اسٹرا مین تھا کہ وہ بات جو کہ مفتی صاحب نے کی ہی نہیں ہے ان کی طرف منسوخ کر دینا. اور آپ نے بڑا اچھا نقطہ ہائی لائٹ کیا بابر کہ یہ جو شخص ہے یہ صرف اور صرف وہاں پر اسلام کے خلاف بول رہا ہے, دیٹس آل, اور کچھ نہیں ہے. اس کو صرف اسلام کے خلاف بولنے کے لائسنس ملا اور یہ امریکہ میں بیٹھ کے اپنی چیزیں جس کی آپس میں کامن گراؤنڈ بنتی نہیں ہے, نہ لاجیکلی نہ فلسفے. یہ بیسک, جیسے میں نے ویڈیو میں بتایا, بیسک اگر کسی کو فلسفی کی بیسکس الف بے پہلی دوسری جماعت کی فلسفی جس کو آتی ہو نا, وہ بندہ بھی اس کی بات کو کہے گا کہ کتنی بڑی بونگی ماری ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ دماغ سے ہوتے ہیں فارغ, ان کے ماننے والے بھی فارغ ہیں, جن کو نہ کاز کا پتا ہے, نہ ایفیکٹ کا پتا ہے, نہ ریگریس کا پتا ہے, نہ انفائنائٹ ریگریس کا پتا ہے, نہ فائن ٹیون کلاز کا پتا ہے, نہ فائن ٹیون آرگیومنٹ کا ان کو جواب دینا آتا ہے, اور نہ ہی ان کو کنٹینجنسی آرگیومنٹ کا دینا آتا ہے. صرف ایک ان کے پاس ہے مظلوم کارڈ, دیٹس آل, جو کہ جاوید اختر بھی کھیلتا رہا. وہ ایموشنل, ہاں جی, ایموشنل لتی ہے چار کہ جی وہ فلاں غزہ میں بچے مر رہے ہیں تو جی خدا کیا کر رہا ہے معاذ اللہ, جی وہ فلاں جگہ کے اوپر یہ ہوا, کعبے کے اوپر کسی نے آ کے چڑھائی کر دی تو ادھر جا کے ادھر گاڈ نے کیوں نہیں روکا, وہاں پر گولیاں چل رہی ہیں, تو یہ باتیں کر رہے ہیں. اور اس کا جواب بھی, اس طرح کی باتوں کا, اس آرگیومنٹ کا جواب بھی, اس کو گاجر کہا کس نے کیوں کہا, سبحان اللہ, اندازہ لگا گاجر کا حلوہ بننے سے پہلے یہ کیا تھا, وہی یہ گاجر کیا تھی, اب اس کو وہ ثابت کریں, اس کو وہ ثابت کریں. تو مطلب یہ صرف کیا ہے کہ ڈینائل ہے بیسیکلی, اپنے ڈینائل کو, اپنی کج عقلی کو, کج فہمی کو, اور اس نے اپنے آپ کو بڑا گندا ایکسپوز کر دیا. اگر کوئی جینولی, میں چیلنج کرتا ہوں بلکہ میں اپیل کرتا ہوں, کم سے کم کوئی لاجیکل قسم کے, واقعی وہ اسٹیفن ہاکنگ کو ماننے والے کوئی جینون ایتھیسٹ جو ہے نا, وہ اس کو پکڑ کے اس کو ڈسون کریں, یہ برباد کر دے گا آپ کے ایتھیزم. ویسے میں ایک جینون بتاؤں شاہ صاحب, میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا, میں نے اس کی گفتگو نہیں سنی. بہرحال دوسرے حارث بکری, حارث سلطان کی طرح یہ صرف اور صرف اسلام مخالف نظر آیا مجھے, کہیں سے بھی ملحد نہیں نظر آیا. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بنیاد پر, پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, کس تکلیف کی بنیاد پر اسلام مخالف بکواسات کر رہے ہیں, جیسے کچھ اور لوگ جن کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں. ہندوتوا ہو گیا, اس طرح کی اور چیزیں بالکل وہ تم لوگوں کے لیے نشانی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے لیے نشانیاں بنائی ہیں. اب کتنی مطلب حکمت والی بات ہے یار. اب دیکھیں, ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر بندہ ہوتا ہے, وہ جب اسکول میں پڑھاتا ہے نا کسی 8ویں جماعت کے بچے کو, تو وہ پی ایچ ڈی کا درس نہیں دیتا وہاں پہ. وہ الجبرا کو, چاہے اس نے بندے کے لیول کی ہو, وہ جاتا ہے, وہ بیسک اے پلس بی ہول اسکوائر سے بات کو سٹارٹ کرتا ہے. حالانکہ اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ موسٹ کمپلیکس قسم کی جو تھیریز ہیں ان کو بھی وہاں پر, جو تھیوریٹیکل فارمولاز ہیں, امپیریکل فارمولاز ہیں, وہ ان کو بھی وہاں پر دکھا کے تو اپنی جو ہے نا وہ علم کا اظہار کر سکے اور اپنی برتری بیان کر سکے. لیکن وہ نہیں کرتا. تو یہ بیسیکلی اللہ اکبر اٹھا رہے ہیں اپنے لوگوں کو. دیکھیں نا, لوگوں کو شاہ صاحب یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے, یہ بھی قرآن میں, لا تدرکہ الابصار, اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تم دیکھ ہی نہیں سکتے, تمہاری وہ نظر ہی نہیں ہے, تمہاری نظر اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی. یہ تو نہیں کریں گے گھوڑا اور گدھا مکس کر چیز کا مرضی کے لیے. میں کہوں اویس اقبال, میں تمہیں تب سیانا مانوں گا کیونکہ کتا ایک بڑا ذہین جانور ہے, تو تم بھی دم دکھاؤ. یہ کیا باتیں ہوئی, یہ بونگی ہے. یہ جو اس کے ساتھ میں اس قسم کا مناظرہ ہی ہونا چاہیے. نہیں, آپ دیکھیں, اندازہ لگائیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتا ہے, اور یہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اصل میں کیا ہے کہ ہوسٹ بن جاتا ہے, بلاتا ہے ڈیبیٹ کے لیے اور این موقع پر ہوسٹ بن جاتا ہے. یہی بات اس کی عامر حق بھائی نے پکڑی تھی تو یہ چیخیں مار رہا تھا. 6 منٹ کے اندر مناظرہ, اپنا گھر کا براڈ لگائی ہوئی اپنی یوٹیوب پر چھوڑ کے بھاگ گیا تھا, اپنے کپڑے چھوڑ کے ادھر ہی بھاگ گیا تھا. وہ ابھی بھی اتار پڑے ہوئے مسلمانوں کے پاس ہی, ٹھیک ہے نا. تو اس کی یہ اوقات ہے, صرف اور صرف کیا ہے بھائی, لوگ جو ہیں وہ لائک کریں یا کوئی مطلب ملحد کہیں واہ جی کیا بات ہے, کیونکہ سارے ملحد بھی اسی ذہن کے مالک ہیں. یہ اسی طرح کی بونگی ہیں. وہ میرا جسم میری مرضی والے لوگ, وہ جو LGBTQ والے لوگ ہیں, وہ سارے کے سارے یہی مینٹالٹی ہے, یہی ان کی مینٹالٹی ہے. مطلب اس بندے کو, اویس اقبال کو, ایک مرد اپنے آپ کو عورت آئیڈینٹیفائی تمام جو اس کے لیے کمیونٹی ہے اس دنیا کی, اس سے میری گزارش ہے کہ اس کالی بھیڑ کو اپنے اندر سے نکالے. آپ نے واقعی میں اگر سامنا کرنا ہے, اپنے پرچار کرنا ہے, تو آئیں ان مسلمانوں کے ساتھ بات کریں جو باقی لاجیکل بات کر سکتے ہیں. اس طرح کے لوگوں کے کندھوں پر رکھیں گے تو آپ کا یہ انجام ہوگا کہ کل کو انہیں پیسے زیادہ کوئی اور دے دے گا, کل کو یہ جیو بن جائے گا. اس کو تھوڑے سے پیسے اور ملیں گے تو کل کو ہو سکتا ہے یہ دوبارہ اسلام قبول کر لے. یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں, اسلامو فوبس تو پیسے لیتے ہیں, پیسے کھاتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں سے اپنی جان چھڑائیں. یہ بندہ, میں نے اسی لیے اپنی وہ رپلائی میں کہا نا, میں نے کہا یہ بندہ جو ہے نا, اس کا ایتھیزم سے تعلق نہیں مجھے لگ رہا, اس کا مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹینڈ اپ کامیڈین زیادہ اس کا سیکیور ہے.
अवैस इकबाल, अगर तुम जो हो वो स्टैंड अप कॉमेडी शुरू कर दो ना, तो शायद तुम्हारे जोक ज्यादा बिक जाए, बजाय इसके कि तुम ये जो बकवासात करते फिर रहे हो। फिर बीच में वो जी भाई गॉड की एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लाने की जरूरत क्या थी बीच में? मुझे बताओ ना भाई, टॉपिक के ऊपर क्यों नहीं रह रहे तुम क्यों नहीं? क्योंकि तुम बेसिकली कंटिजेंसी आर्गुमेंट का तुम्हारे पास कोई जवाब पर सिर्फ और सिर्फ लोगों के वो वाले कमेंट्स को कोलाज बना के पेश किया गया कि इस डिबेट के बाद कितने हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया, कितने एथियस्ट ने एथिज्म को छोड़ दिया। इसीलिए इसने पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर भरा पड़ा है लोगों की टेस्टिमनीज का कि मैं एथियस्ट था, मैंने ये डिबेट सुनने के बाद मैंने एथिज्म छोड़ दिया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि गॉड एग्जिस्ट करता है और इस्लाम का खुदा ही है जो कि प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई कर सकता है एक खुदा के वजूद के या खुदा के आइडिया को। वो एक अलग बहस है कि खुदाओं के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से गॉड की कुर्बत हासिल करने का कौन जरिया बन सकता है, वो एक अलग टॉपिक है, वो आज का टॉपिक नहीं है हमारा। लेकिन लोगों ने जो एथियस्ट थे उन्होंने थीइज्म की तरफ आए। मैं कहता हूं कि इस डिबेट के बाद अगर कोई शख्स एथिज्म छोड़ के क्रिश्चियन भी हो जाएगा ना, तो फिर भी वो बेहतर जगह पे चला जाएगा बजाय इसके कि इन बेगैरतों के साथ बैठे जो सिर्फ इस्लामोफोब्स हैं जी। और कम से कम वो किसी ना किसी तौर से तो खुदा के करीब हो जाएगा। और इसने इसलिए वीडियो बनाई है मैं कि कहता हूं इसी भागते जगह पे हुए स्टीफन हॉकिंग भी बैठा होता है मुल्हिदों कि इनके तमाम के तमाम जितने भी एथियस्ट हैं जो रियल वाले हैं, तो खैर बोंगा है, वो बैठे होते हैं ना, तो फिर भी इनफाइनाइट रिग्रेस को ये एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। और शाह साहब इसको इतना मुश्किल क्यों बना रहे हैं? भाई ने मुफ्ती साहब ने आर्गुमेंट दे दिया ना, ये एथियस्ट अब उसका काउंटर आर्गुमेंट दे के वीडियो बना दे, इतनी जरूरत है तो ये कौन सा दूर है? अब दे दें, दुनिया तो सुन रही है ना, प्लेटफॉर्म मौजूद है, फ्री विल मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, अब दे दें आप। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये जो इसने ये बात कही है ना, ये सुनिएगा जरा, मैं इसके ऊपर तबसरा चाहता हूं करूं, साथ साथ चलें हम सारे। ये जरा सुनिएगा दोबारा एक दफा। मुझे आज एक दिखाई दिए जावेद अख्तर साहब। हाँ, ये देखिए जरा। मुझे लगता है कि जावेद अख्तर साहब जो हैं वो मुनाजरे के आदमी नहीं है, और जो दारुल उलूम देवबंद के अंदर मुफ्तियों की ट्रेनिंग होती है वो मुनाजरे की ट्रेनिंग होती है। वो अच्छा, ये जो है ना वो नहीं है, ठीक है, ये वाला क्या है, ये अंगूर खट्टे हैं, ये बचपन में स्टोरी सुनाई जाती है ना, वो फॉक्स होता है, वो जाता है, नहीं है तो क्या वो बॉलीवुड वकार भाई ने बड़ा ही वकार सही पकड़े हैं, वकार भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है। मैं एक बात और कहना चाहूं कि ये सिर्फ मुल्हिद नहीं है वकार भाई, इसके बेटे का बयान है कि मुल्हिद तो इसकी फैमिली है, इसका बाप, इसके घर वाले, ये जो थियस्ट है ना उनके मुखालिफ है, ये एक कदम बढ़ के है, ये उनके खिलाफ लड़ने वालों में से है। तो जिसके बारे में बेइज्जती करवाने के बाद एथियस्ट कह रहे हैं कि इसको ना मुनाजरा आता है, ना गुफ्तगू आती है, ना इल्मुल कलाम आता है, ना ही सलाम आता है, ना ही बात करने का ढंग है, और उन्होंने इसको अपनी बरादरी से निकाल दिया। क्या कहने के खिलाफ हम इसको अपने बराबर का समझते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। ये यार असल चीज ना, आपको यही सुन के तसल्ली आपको इधर से ही होगी। ये हमने तुमसे दूरी इख्तियार कर ली, हमने तुम्हें अपनी बरादरी से निकाला, तुम हमारे यहाँ चार दीवारी में दाखिल नहीं हो सकते, हमारे साथ बैठ नहीं सकते, हम तुम्हें अपने बराबर का समझते ही नहीं। ऐसे ये जो मुल्हिद ने जो ये बात की डिसओन किया है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह यहाँ पर बड़े बड़े मुरब्बी होते असल में मुरब्बी हैं, लेकिन ना जब पूछा जाता है ना उनसे कि आप भाई मुरब्बी हैं जी, तो कहते नहीं मैं मुरब्बी नहीं हूं, वैसे मैं तहकीक कर रहा हूं। तो बेसिकली ये जिस तरह वो डिसोन नहीं करते थे, कोई मुनाजरा हार जाए मुरब्बी है तो मुरब्बी नहीं है, कहते जाजी मुरब्बी है, ठीक है। असल में वही कहानी यहाँ पर हुई है। ये सुनिएगा, इस बंदे ने आते ही पहला काम क्या किया, डिसोन किया है जावेद अख्तर को। किन अल्फाज में? इन अल्फाज में। करवाया किसने है? ये उस ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया है जो कि बेसिकली मुल्हिदों का खुदा है इस दुनिया के अंदर, जिसको हर चीज मानते हैं, जिससे ये पैसे लेते हैं, जिनकी बेस के ऊपर ये पैसे लेके इतनी लिशकती हुई शेव करते हैं सुबह सुबह उठ के। सुनिएगा। रात मुझे आज की इस वीडियो में बात करनी है मुफ्ती शुमाइल और जावेद अख्तर साहब के दरमियान जो नई दिल्ली के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर एक मशहूर जमाना मुनाजरा हुआ या डिबेट हुई, उसके ऊपर हर तरह की बातें की जा रही हैं। जो मुसलमान हैं वो ये कह रहे हैं कि मुफ्ती शुमाइल ने ये डिबेट जीत मुफ्तियों की ट्रेनिंग होती है, वो मुनाजरे की ट्रेनिंग होती है, वो इल्मुल कलाम की ट्रेनिंग होती है, वो अगले फरीक को बाकायदा बेसाख्तगी के साथ लाजवाब करने की ट्रेनिंग होती है। और यहाँ पर जावेद अख्तर साहब जो है मुझे थोड़े से वीक दिखाई। जी, तो नाजरीन हैरत ज़दा बात यह है कि ये जो लोगों को ये झूठ और बेईमानी बताते हैं कि फलाना शख्स या फलाना और तमाम लोग अपनी तहकीक की बुनियाद पर मुल्हिद हो रहे हैं, वो तो झूठ सामने खुल कर आ रहा है कि ये लोग दजल और धोखा करते हैं। ये भी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये काम कर रहे हैं, क्योंकि जो शख्स भी तहकीक की बुनियाद पर इल्हाद में जाएगा वो तो खुद अपना केस लड़ सकता है।
उसको क्या जरूरत है किसी और की रिप्रेजेंटेशन की, या कोई और उसकी जगह आकर केस रिप्रेजेंट करे या दलाइल दे या सबूत पेश करे, नंबर वन। फिर जिस तरह भाई ने कहा कि शुरू में इसका सलाम करना ये जाहिर करता है कि ये टारगेट ही मुसलमानों को कर रहा है कि उनके अंदर शकूक शुबहात और गलत सोच को जो है वो परवान चढ़ाया। वो अरसे से काम करने वाला, बैकग्राउंड रखने वाला, लोगों को बताने वाला कि एथियज्म है क्या, और ये उसको जुटलाने पे लगा हुआ है, उसकी हर बात गलत कर रहा है, उसको ही गलत साबित कर रहा है कि भाई उसके पास तो इल्म ही नहीं है, उसके पास इल्म होता तो इस बात का जवाब देता। दूसरी तरफ अच्छा एक चीज मैं दोबारा फिर ये पिन पॉइंट करूंगा कि ये जो हिंदुत्व के जो वो दावा होता है ना कि जी ट्रेनिंग दी जाती है मदरसों में, भाई वहां तालीम दी जाती है, और मदरसों में जो ये लोगों का कॉन्सेप्ट है ना कि जी जो जाएगा वो मौलवी बन के वहां से निकलेगा, ना उसके पास दुनियावी इल्म होगा, ना दुनियादारी में वो बंदा किस तरह कामयाब होगा, लोगों को किस तरह बात करेगा, अगर वो किसी अमली तौर पे किसी अपनी पर्सनल जो लाइफ है उसको लेके कैसा चलेगा, तो ये उसका एक नमूना है कि वो वहां से तालीम हासिल करके निकले। अल्लाह पाक का कुरान उनके दिल में महफूज है, और वो दुनियादारी में भी लोगों को वहां जवाब देने के लिए हर वक्त एग्जैक्टली तो बेसिकली ये बहुत बड़ा जो एक रेटोरिक इन्होंने खड़ा किया हुआ था ना कि हमारे मदरसों के खिलाफ ये मुल्हदीन ने और इस्लामोफोब्स ने, देखें और ये हर इंग्लिश बैक्ड या कोई ऐसी मतलब हुकूमत बैक्ड जो होती है मुसलमानों के खिलाफ मुहिम होती है, सारों का एक ही होता है, मौलवी ऐसे करते हैं, मौलवी वो करते हैं, मौलवी ऐसे हैं, मौलवी वो है, मौलवी ये है, मौलवी वो है। तो बेसिकली इनको तकलीफ ये हुई है कि एक मौलवी नहीं कम पाता है, असल मसला ये हुआ है इनके साथ। जी बाबर भी मौजूद है, ये सैयद मोहम्मद मुस्तफा, अगर आपको ज्यादा तकलीफ है ना तो ऊपर आके सवाल करें, नीचे बैठ के बात नहीं होगी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो काइंडली अगर आपने गुफ्तगू में हिस्सा लेना है और अगर आप एथीज्म के मुकदमे को समझ सकते हैं और उस पर बात करने की अहमियत रखते हैं और हिम्मत रखते हैं, आइए ऊपर फिर बात करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर आके जो है ना इस तरह की बातें करना बंद करें। जी आगे बढ़ता हूँ, वकार भी मौजूद है मेरे साथ। जी जी मैं सुन रहा हूँ भाई आपको, आगे सुनिएगा। बाबर किधर है? बाबर भी राइट बैक तो नहीं लेके गया था? वो लिखे गए हैं कि मैं आ रहा हूँ अभी। अच्छा चले मैं फिर स्लो रखता हूँ इसको थोड़ा सा, इसलिए उनके पास एक जो बिग बैंग से लेकर आज तक जो एवोल्यूशन हुआ है यूनिवर्स का, अगर तुम्हें पता है बिग बैंग के बारे में, तुम्हें एवोल्यूशन के बारे में पता है, क्या तुम इनफाइनाइट रिग्रेस को प्रूव कर सकते हो? नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। तो ये बात कहनी कि क्योंकि उनको ये नहीं पता, क्योंकि उनको वो नहीं पता, उनकी एक टांग लकड़ी की थी, वो हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन क्या हुआ कि एक दिन उदय भाई को गुस्सा आया, उन्होंने पकड़ के गोली मार दी टांग में, वो टांग फ्रैक्चर हो गई और इस बुनियाद के ऊपर जावेद अख्तर मुनाजरा ना कर सका। बोंगियां, इररिलेवेंट बातें। ये वही तकरीर मैं सुन रहा हूँ, मुझे जैसा लग रहा है मैं ऐसी तकरीर सुन रहा हूँ कि बचपन के अंदर जिस माँ का बच्चा फेल हो जाता था ना, तो जब वो बाकी माएं बैठ के अपने अपने बच्चों के रिजल्ट बता रही होती थी ना, तो एक माँ बोलती नहीं थी कि उससे पूछा जाता है हाँ नहीं पीनो तू दस तेरे पुत्र दा की बनया, तो आगे छड़ नहीं सारे इको जे ने, असल च ना मुंडा बीमार रहंदा है, ओदा नक बड़ा वग रहा सी पेपर वाले दिन, रात नूं बुखार चढ़िया होया सी, इस वजह करके पेपर च काम नहीं कर सकिया। ए वे तेरे आर्गूमेंट नहीं पीनो की होया, हाँ वो बचल च ना बच्चे नूं उस पेपर दी रात पहले ना ओदी कॉपी करवा जरूरी है कि हम ये जान लें कि आज के इस टॉपिक में कौन सा स्टैंडर्ड सही होगा और कौन सा गलत होगा। ये देखें वो स्टैंडर्डाइज कर रहा है, वो बंदा स्टैंडर्डाइज कर रहा है। ये देखें यार इस बंदे ने कमाल स्टैंडर्डाइजेशन की है, इसको कहते हैं परफेक्ट ओपनिंग ऑफ अ मुनाजरा, कि उसने असूल बता दिया मैं किस असूल की बुनियाद पर, किस असूल की बुनियाद पे, किस स्टैंडर्ड की बुनियाद पर अपना मुकदमा साबित करूंगा। कमाल। ये सुनिएगा जरा, उसमें ये शर्त मौजूद है कि मैं किसी भी स्क्रिप्चर से हवाला नहीं दूंगा। ये बंदा ये बात करेगा, गौर से सुनिएगा। और इस बॉन्डे आदमी ने जो क्लीन शेव वाला, जो बाबर की उंगली के निशाने के ऊपर इस वक्त बैठा हुआ है, और ये उंगली जो है वो दिमाग पे तो रखी गई है लेकिन ये कहीं और जा रही है। ये सुनिएगा। सबसे पहला स्टैंडर्ड जिसे मैं समझता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ लपकेंगे, वो है साइंस। जबकि साइंस दर हकीकत खुदा के एग्जिस्टेंस को डायरेक्टली साबित करने या उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए इसका मानना ये है वैसे इकबाल का, और कहना ये है कि जावेद अख्तर साहब अकल से भी फारिग हैं, क्योंकि जिस बुनियाद पर डिबेट होनी थी वो उस काबिल ही नहीं है कि वो मुफ्ती साहब से डील कर सके। जी शाह साहब। अल्लाह अकबर, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और अब खवातीनो हजरात, हम आपके सामने मुफ्ती नदवी साहब का वो आर्गुमेंट जिसने खलबली मचा दी, जिसने नींदें उड़ा दी अवैस इकबाल और जैसे मुल्हिदों की, और ऐसा मौका आ गया कि इनको जावेद अख्तर को जो है वो डिसऑन करना पड़ा सोशल मीडिया पर आके। ये दलील जरा सुनिएगा। मुफ्ती साहब ने कहा दलील हम देंगे और ऐसी देंगे कि कोई मुल्हिद उसको चैलेंज नहीं कर सकेगा। दलील सुनिएगा मुसलमान की, दलील सुनिएगा एक थियस्टिक जो है वो मुकर्रर की, दलील सुनिएगा एक मदरसे के पढ़े हुए नौजवान की। आप लॉजिकल और रैशनल रीजनिंग को बयान करने की कुव्वत देखिएगा, कैसी खूबसूरत दलील रखने का तरीका सीखिएगा। जी दलील कैसे रखते हैं? दलील देंगे, ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रिफ्यूट नहीं कर। एग्जांपल सोचते हैं, चल एक सिनेरियो, अब हम सिनेरियो, तमाम ऑडियंस से गुजारिश है, हम और आप एक आइसोलेटेड आइलैंड पर हैं,
ऐसा आइलैंड जहां पे हमसे पहले कोई कभी नहीं गया। चलते चलते आपके सामने अचानक आपने देखा एक पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है। सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आएगा कि ये बॉल यहां क्यों आई, कैसे आई, ये पिंक कलर की ही क्यों है, कोई और कलर भी हो सकता था, ये इसी शेप में क्यों है, कोई और शेप भी हो सकता था। नेचुरली आप इस तरफ पहुंचेंगे कि कोई ना कोई है जिसने इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ इस बॉल को बनाया है और यहां पे रखा है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो बॉल है इसका एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है, ये एग्जिस्ट कर भी सकती थी, नहीं भी कर सकती थी, और एग्जिस्ट करना ही था तो किसी और फॉर्म में करती, किसी और कलर में करती। अब आप इस बॉल को एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, यहां तक कि ये बॉल यूनिवर्स के साइज की हो जाए। बताइए कि क्या साइज के बढ़ जाने से सवाल बदल जाएगा? हरगिज नहीं बदलेगा। अभी भी सवाल रहेगा ये यूनिवर्स कहां से आया, इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ कहां से आया, जिसमें ये क्यों सबूत आया, पेश कर सकते हैं। किसने बनाया। और बड़ी खूबसूरती से, एक तो सबसे बड़ा जो कमाल उन्होंने किया कि स्टेप बाय स्टेप उन्होंने स्टैंडर्ड क्लियर कर दिए और रीजन दे दिए कि क्यों ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। आमतौर पे एथियस्ट बड़े उछलते हैं कि जी साइंस का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस लेवल पर जाते ही नहीं है कि कलेक्टिवली जो ये कम्युनिटी है, और उन्होंने इसका ये रेफरेंस भी पेश किया कि साइंस, नेशनल साइंस एकेडमी ने इसका एतराफ किया है कि साइंस ना खुदा की एग्जिस्टेंस साबित कर सकती है और ना ही उसका ना होना साबित कर सकती है। तो ये उस तरफ जाते ही नहीं है, लोगों को सिर्फ वो नौसरबाजी और ढंग, उन्होंने एक रंग बचाया हुआ है दिखाने के लिए कि जी हम साइंस को मानने वाले, हम पढ़े लिखे, हालांकि ऐसी बात नहीं है। फिर उन्होंने दूसरे चीजों को भी एक्सप्लेन किया कि क्यों उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जैसा कि उन्होंने बड़ी बहादुरी का जो है वो, मैं जिस तरह मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया कि वो रेवलेशन यानी स्क्रिप्चर या ऐसी चीजें नहीं पेश करेंगे, वरना वो कुरान मजीद की आयत पेश करते तो अल्लाह अकबर, किसी चीज की और जरूरत ही नहीं। फिर इसी तरह चलते हुए उन्होंने एक चीज बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि अकल के ऊपर बात होगी, जो कि मैं इसको अलग अकल से परखना चाहता हूं। इससे पहले भी उन्होंने बताया कि अगर आप उसको फिजिकली यानी इंपेरिकल एविडेंस मांग रहे हैं तो उसके लिए भी क्यों ये मुमकिन नहीं, ये भी उन्होंने बताया। तो लेकिन उसके बाद उन्होंने इसको सही क्लोज करके, कॉर्डन करके कि भाई अकल, और उसके अंदर भी डेफिनेटिव, ये नहीं कि आपने चला ही जाना है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उन्होंने क्लोज करके और वो एग्जाम्पल पेश करके उनको दावत दी है। तो आज भी किसी मुल्हिद के अंदर इतनी जरूरत है कि वो क्यों मुल्हिद है, वो क्यों खुदा की एग्जिस्टेंस का इनकार करता है, तो वो कर ले। मुसलमानों से तो आप लड़ ही नहीं सकते, अभी तो मुफ्ती साहब के हाथ बंधे हुए हैं, उन्होंने खुद बहादुरी कर कर अपने हाथ बांधे हुए हैं और वो ये बयान ही नहीं कर रहे जो इस्लामी तालीमात है, वरना आपके पास रहे नाम खुदा का कोई बात ही ना रहे, आप गोल गोल घूम रहे हैं। और ये जो बंदा है, ये बंदा इस कदर बहादुरी जो उन्होंने मुफ्ती साहब ने दिखाई, और ये अवैस इकबाल इस कदर नाहंजार और बेशरम आदमी है कि ये उल्टा उन्हीं की बहादुरी को ये कर रहा है कि ये इसको इस्लाम और एक एथियस्ट का मुकाबला साबित कर रहा है। अरे भाई वो तो उससे बढ़कर अपने आप, वो कमी कमजोरी तो तुम जावेद अख्तर की भी नहीं निकाल सकते। क्यों निकालोगे भाई तुम उसकी? जब उसने साइंस इंटरनेशनल साइंस एकेडमी का हवाला पेश कर दिया वहां पर, तो अगर तुम वहां पे बिग बैंग छोड़ के तुम वहां पे कुछ भी करते रहते, उसने एक हवाला पेश करके तुम्हारी पूरी की पूरी साइंस को वैसे ही उठा के साइड पर रख दिया। तो मैं यहाँ पर एक चीज सॉरी शाह साहब ऐड करना चाहूंगा और सब सुनने वालों को कि आज हम ना उस मनाजरे के ऊपर खास तौर पर गुफ्तगू नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है कि उस मनाजरे में बहुत कमाल की बातें और एक्सप्लेन मजीद होने वाली हैं, जो कि मुफ्ती साहब ने मुफस्सल अंदाज में यानी फौरन क्या कहते हैं उसको समराइज करके बयान की हैं। बड़ी कमाल की बातें की हैं, लेकिन टाइम को उन्होंने ज़हन में रखते हुए ना बड़ा वो किया। हमारा फोकस जो है वो ये मनहूस अवैस इकबाल है जो इसको बहुत सारे गलत रंग देना चाह रहा है और एक गलत सोच को सामने लाना चाह रहा है। हम इस पर फोकस कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज उधर से मिस हो जाए, हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर भी बात हो, जो मुफ्ती साहब ने जो सूरत दिया ना, उन्होंने जो शुरू का जो भी मौजूद है लोगों के लिए जो एथियस्ट से गुफ्तगू करते हैं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि उस पर बड़ी गुफ्तगू हो सकती है घंटों, लेकिन हम फोकस कर रहे थे अवैस इकबाल पे, इसलिए मैं उधर ज्यादा नहीं बोल सका। जी नहीं, बहुत बेहतरीन, हमें जाने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें देखना है। तो मेरा ख्याल है मुफ्ती साहब ने हमारे से बेहतर समझा दिया, हम इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकते जितना ऑलरेडी मुफ्ती साहब ने कर दिया। हम तो इस मुल्हिद की, जो कि बेसिकली एक मुल्हिद नहीं है, जो बेसिकली एक इस्लाम का दुश्मन है, सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बात करना इसको आती है और इसके अलावा बाकी और कोई बात नहीं करता, हम तो इसको बेसिकली डिकोड कर रहे हैं कि इसने इस मौके को भी अपने रवायती अंदाज में एक नैरेटिव को खास तरीके से पुश करने की कोशिश की है। और 6 मिनट की इसकी वीडियो जो है वो हमने आपको सुनवाई है, उसका थोड़ा सा हिस्सा हम दोबारा आपको सुनवाते हैं और फिर इसके ऊपर फर्दर थोड़ी सी आगे गुफ्तगू करते हैं। फिर मुझे बाबर भाई, मेरे पास अभी कम नहीं, फिर आज इसको ना कंक्लूड करेंगे ताकि मैं इसको कट करके डाल सकूं और फिर हम इंशाल्लाह फिर सेशन रख लेंगे। ठीक हो गया, चलो मैं थोड़ा सा और प्ले करता हूँ, फिर उसके ऊपर आप आगे अपना तबसरा कीजिएगा, ठीक है? आगे सुनिएगा। तो यूनिवर्सल का इंटेलिजेंस वाला होना चाहिए। हर शय का खुराक से हमारा वही अल्लाह है जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर मबूस किया था। यहाँ पर ये जो मुफ्ती हजरात हैं चालाकी ये करते हैं कि ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर बात करते हैं, ये एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह पर बात नहीं करते। और अगर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड साबित हो जाए तो फौरन से कहते हैं कि ये हमारे वाला अल्लाह ही है, ये आप वाला भगवान नहीं है। इसीलिए इन अब यहां पर आप देखें, ये
इस बंदे ने यहाँ पर क्या इतना बात की? बड़ा धोखा है शाह साहब ये जो इसने किया, इतना बड़ा धोखा ये बंदा कर रहा है कि जब बात ये है कि तुम एथियस्ट हो, उस बंदे ने, मुफ्ती साहब ने अगेंस्ट एथियज्म एक आर्ग्यूमेंट पेश किया है, तुमने उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट या अपनी दलील पेश करनी है, और तुम क्या बात कर रहे हो कि जनाब अली भाई मुफ्ती साहब जो बयान कर रहे हैं वो अल्लाह ताला की ही एग्जिस्टेंस बयान कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक है खुदा की एग्जिस्टेंस। मुफ्ती साहब क्या मतलब है कि आपको लग रहा है कि कुछ और बयान कर रहे मेन हैं हदफ मुफ्ती साहब? सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, और ये इसने पहले इस्लाम के अंदरूनी फिरकों के दरमियान में फिरकावारियत फैलाने की और उसको हवा देने की कोशिश की है, या उसको इनिशिएट करने की कोशिश की है, इंटिमिडेट करने की कोशिश की है ये, और फिर उसके बाद जब उसका जी नहीं भरा तो फिर इसने जो थियस्टिक रिलीजन्स हैं, स्पेशली मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान में जो एक यहाँ पर एक मिलकर एथीज्म के खिलाफ एक लॉजिक क्रिएट हुआ है, ये उसको बेसिकली मध्यम करने की कोशिश कर रहा है, उसको लोगों की नजरें हटाने की कोशिश कर रहा है। जो भगवान के मानने वाले हैं, जो अपने खुदा का नाम भगवान लेते हैं, जो कि हिंदू हैं, उनके दिमाग में डाल रहा है कि नो 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 नो, ये मुफ्ती शुमाइल जो था ये तुम्हारी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ये तो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन था, ये तो मुफ्ती था जो चलाकियां कर रहा था। ये बेसिकली यहाँ पर करने की इसने कोशिश की है। और लेकिन ये खुद शाह साहब, लेकिन ये खुद बेनकाब हो गया वो इस तरह कि ये तो दूसरों का इख्तलाफ, दूसरों के मुखालिफ ही इसलिए है कि दूसरे जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो तकलीद में होते हैं, उनका कोई लीडर होता है। अब देखा जाए तो एथियस्ट तो अपनी ऑब्जर्वेशन पर एथियस्ट होता है, इनका तो कोई ग्रुप। ये चीजें अमेजिंग थी जी, मैं तो माशाल्लाह बहुत इससे इम्प्रेस हुआ हूँ, क्योंकि उन्होंने एक बात आप सब भाइयों ने नोट की होगी, उन्होंने कहा हम साइंस के खिलाफ नहीं है, साइंटिज्म के जो है ना उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि आप साइंस के ऊपर मत जाए, साइंटिज्म के पहुंचे। अल्लाह ताला माशाल्लाह। देखिए मैं एक बात समझता हूँ कि छोटी सी बात है, अगर कोई इंसान कुरान पढ़ ले, आज से 1400 साल पहले कुरान में जब ये बताया गया कि समुंदर ओशन के बीच में पानी के 2 रंग हैं, ये मतलब कैसे पता लग सकता है? ये जो बैठे हुए हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते, चले इनकी मर्जी ना माने, लेकिन ये नॉलेज कहाँ से आया, इस बारे में जरा फरमाए। जज़ाकल्लाह। जी सर, ये बहुत अच्छी भैया आपने बात की, और ये इसीलिए तो हम इसको बहादुरी कह रहे हैं कि जो मुफ्ती साहब ने ये एज अ स्टैंडर्ड एक्सेप्ट किया, अपोनेंट की रिस्पेक्ट करते हुए, कि हम किसी भी स्क्रिप्चर को, खास तौर पर उनका मुराद तो यही होगा कि इस्लामी तालीमात या कुरान मजीद की आयत पहले भी को इसने पेश नहीं करेंगे, क्योंकि करते एकदम से पटरी से उतर गया, सिर्फ लोगों को क्या हुक क्रिएट करने के लिए कि भाई आप कोई बात आने लगी, आप कोई बात आने लगी है, और अब ये 3 मिनट इसने जाया किए इररेलेवेंट बातें करके, इधर की उधर की करके, और आखिरी 3 मिनट के अंदर देखे कैसे भोंडे एतराज करेगा ये इस मुनाजरे के ऊपर, और जिसके ऊपर फिर हम थोड़ा सा शॉर्ट तबसरा करके अगले 10-15 मिनट में इसको क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। मुफ्ती शुमाइल साहब का जो कंटेंजेंसी आर्ग्यूमेंट है कि जनाब इस कायनात के अंदर हर शय का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, लिहाजा इस कायनात को बनाने वाला हमारा क्रिएटर जो है वो टाइमलेस है, वो स्पेसलेस है, जो कि बेसिकली नथिंगनेस की डेफिनेशन होती है। ये याद रखिएगा, टाइमलेस होना और स्पेसलेस होना नथिंगनेस होने की डेफिनेशन होती है, ये भी इसने झूठ बोला है। अच्छा आगे चलते हैं। तो अगर मुफ्ती शुमाइल के कंटेंजेंसी आर्ग्यूमेंट को तस्लीम किया जाए तो इस कंटेंजेंसी आर्ग्यूमेंट का जो स्टेप 2 है वो क्रिएशन ऑफ फिजिकल यूनिवर्स है, और जो स्टेप 1 है वो एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन फिजिकल गॉड है। तो ये बात देनी है। मैं कहता हूँ शाह साहब, वो जो दूसरे मिनट के बाद ना मैं अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ूंगा, ये वाला। अब मुझे बताएं, उस तकरीर के उस दूसरे मिनट की कैद में उस वक्त में हूं मैं? नहीं है ना, लेकिन आपको पता है कि आपने क्या कहना है आगे जी। तो खुदा क्योंकि ऑल नोइंग है, इसलिए वो वक्त की कैद उस पर है ही नहीं, वक्त उसकी क्रिएशन है। वक्त उसकी क्रिएशन की भी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल। क्रिएशन तो उसकी यूनिवर्स है, मतलब हर चीज ही मैं उस अंदाज में करूं। टाइम को हम डिफाइन कैसे करते हैं? टाइम क्या चीज है? टाइम इस यूनिवर्स की एक डायमेंशन है, और डायमेंशन तब डेवलप होकर सामने आती है, डायमेंशन तब आती है जब वो चीज एग्जिस्ट करना शुरू हो, तो तब डायमेंशन आती है आपके सामने। जी, जिस तरह भी मैं कह रहा हूं कि जब तक यूनिवर्स से पहले टाइम का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम रेलेवेंट है यूनिवर्स के साथ। अगर यूनिवर्स नहीं एग्जिस्ट करता, टाइम भी नहीं है। और इन्होंने कहा ना कि टाइमलेस, इन्होंने टाइमलेस की भी डेफिनेशन बदल दी। टाइमलेस का मतलब ये कतअन नहीं है, ये कतअन नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इस यूनिवर्स के क्रिएट होने के बाद स्टार्स की कोर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो बात है मुफ्ती साहब की कि हमारा जो गॉड है टाइमलेस है, सरासर गलत है। इसको लॉजिकली मैं साबित कर सकता हूं, क्योंकि इनका जो गॉड है, इनका जो फर्जी इमेजिनरी गॉड है, जो इनके पैगंबर के जहन में पाया जाने वाला ख्याल था, बकौल इनके कि जब आप उसकी इबादत करते हैं तो वो खुश होता है,
राइट। जब आप उसकी इबादत करते हैं तो वो खुश होता है, और जब कोई आप बुरा काम करते हैं तो वो नाराज होता है। यानी जिस लम्हे वो खुश होता है वो लम्हा अलग है, और जिस लम्हे वो नाराज होता है वो लम्हा अलग है। यानी इन दो लम्हात के दरमियान जो फासला है वो मेजरेबल टाइम है, और जहां पर मेजरेबल टाइम आ जाता है वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि हमारा गॉड जो है वो टाइमलेस है। इतनी बड़ी बोंगी यार मारी ये इसने। क्या बकवास मारी है शाह साहब इतनी इसने। बड़ी बोंगी मारी, ये वही बात जो भी आपने की ना मिसाल दी कि अगर एक ऑथर किताब लिख रहा है, उसके दिमाग में ये सारी मुल्हिद किताबें नहीं मेटाफॉर्स हैं, है, उसको ये पता है मैंने इस्लाम chapter 1 दुश्मन है। कोई ये इस्लाम दुश्मन है। कोई आर्ग्यूमेंट खुदा के खिलाफ नहीं है, इस्लाम के खिलाफ। कोई आर्ग्यूमेंट बिल्कुल। एथियज्म के हक में नहीं है, इस्लाम के खिलाफ। बस ये है इसके पास। ये बस यही है इसके पास, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है। अब देखें कि कैसी बड़ी बड़ी इसने बोंगी मारी है। एक चीज को इररेलेवेंट चीज को ये रेलेवेंट बना के बड़ा अपनी तरफ से कमाल कर रहा है। और इसकी शक्ल इस वक्त आप देखिए ना, जब ये पेश कर रहा है, कह ही नहीं सकते तो अपनी तरफ से फुल जिस तरह बड़े को आगे पब्लिक बैठे दाद दे रही है, दो रफेटे मुंह तेरे। आगे सुन लीजिए आखिरी मिनट, और उसके बाद फिर हम इसको कंक्लूड भी करेंगे। सुन लीजिए आगे। और एक सवाल मुफ्ती शुमाइल साहब इस दावत के साथ आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि आप जो है एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड पर यासिर नदीम वाजदी साहब की तरह मुझसे डिबेट करें, तो मैं आपको अपनी तरफ से दलाल देने की कोशिश करूंगा और आपको उस गुमराही की दलदल से निकालने की कोशिश करूंगा जिसे आप इस्लाम कहते हैं। और सवाल ये है कि ये देखिए फिर इस्लाम पर है। दूसरा मैं इतना कहूंगा, आप इसको क्लोज करें कि अवैस इकबाल इज ट्राइंग टू बी रेलेवेंट यूजिंग रबिश एंड इररेलेवेंट आर्गुमेंट्स। जबरदस्त जबरदस्त। बस ये मेरा एक सेंटेंस है कि ये जो मैंने सुना है, जितनी भी बात सुनी है, ही इज ट्राइंग टू बी रेलेवेंट using irrelevant and totally rubbish arguments. If you are going to criticize something based on this debate, why you are including Islam and Allah subhanahu wa ta'ala or Quran Majid? Did Mufti Sahab use these things? No, he didn't. जो रूल्स थे वो ये थे कि उन्होंने कहा था कि अकल, फहम और शऊर से मैं आपके जवाब दूंगा, मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जवाब नहीं दूंगा। अगर तो ये जो अभी ये जो पॉइंट्स उठा रहा है अवैस इकबाल, अगर ये पॉइंट्स जो है मिसाल के तौर पे जवेद इकबाल साहब उठाते और कुरान मजीद से ये मुफ्ती साहब जवाब देते, तो जवेद साहब जो है पहले 10 मिनट में ही फारिग हो जाते। दिमाग में एक अभी जो इसने पॉइंट्स उठाए हैं, ये अपने फियर का इजहार कर रहा है, अपने डर का इजहार कर रहा है, और इस डर के इजहार में ये टोटली ट्रैक से हट गया है। अगर आपने एनालिसिस देना है तो ये एनालिसिस तो नहीं थे। अगर आपने क्रिटिसिज्म करनी है तो आपने उस चीज पे क्रिटिसाइज करना है जो ड्यूरिंग द डिबेट डिस्कस हुआ है। जी बाबर भाई। बहुत खूबसूरत असमत भाई, जो बात मैंने करनी थी वो आपने कर दी है। और बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि ये इस्लाम दुश्मन, ये इस्लामोफोब है, ये कोई एथियस्ट नहीं है, ना इसके पास कोई दलील है। इसके पास अब भी वक्त है, बल्कि पूरा साल, अगले 10 साल हैं, ये उनकी दी हुई दलील का रद्द कर दे, कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट दे दे, कोई अपना आर्ग्यूमेंट दे दे। ये कभी नहीं दे सकेंगे। तो बाकी तो इसने जो हरकत की है वो सरासर इस्लाम के मुखालिफ होने का सबूत दिया है। एक चीज बाबर भाई, एक चीज सॉरी, कि is it necessary for the creator when he creates something he should be part of the creation? नहीं, ऐसा होता ही नहीं। ये कौन सी लॉजिक है ये जो पेश कर रहा है? एग्जैक्टली कौन सी लॉजिक है यार? तो वो इसने सिर्फ अपना इस्लाम मुखालिफ